Peshawar is really grateful to our speaker Raja Ahmed for conducting us such a knowledgeable and the topic of Google Computing GCP career. तो आई लेट मी चेक। तो मैं अपने स्पीकर राजा अहमद से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो स्टार्ट करें सेशन को। तो ऑलरेडी में ऑडियंस हमें ज्वाइन करती जाएगी, तो फिर आप ये से कंटिन्यू करिएगा, बस कंटिन्यू करें। वेल इट्स ऑल ओके उबैद। काइंडली उबैद कंफर्म कीजिएगा कि एम आई ऑडिबल? श्योर या प्लीज कंटिन्यू। यस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Well, Ubaid, kindly confirm that my screen is visible to all of you. Yeah, sure. First of all, it's been an immense pleasure to be among the techies of one of the most vibrant institutions all around Pakistan. Today we have University of Peshawar, then we have University of Agriculture, Sindh Agriculture University, Tandojam, and Sindh Madrasatul Islam University, Karachi. All the three institutes are well known and are the great alma maters of Pakistan. So welcome all attendees. Today the session will be going to be a tremendous one. Inshallah, I'll try my level best. Let's start with my introduction. I am Raja Ahmed from UET Peshawar. I am a junior year lad pursuing computer engineering from UET Peshawar. Basically, I'm from Aptabad, and I am a social butterfly who loves to interact, and I'm an extrovert type of guy. Well, my technical interests include I am a tech evangelist who loves the tech evangelism. Then I am an open source contributor as well, with over 62 repositories at my GitHub. Then technology stack के हवाले से अगर बात करते थे चलें, तो I am a full stack developer as well. Well, I have a craze for developing desktop applications, and then I am a hobbyist creative designer and a content writer as well. As you all know, that hardware and software are each other's concomitances. So being a degree requirement as well, I love to design customized hardware. Well, we live in a very polished ecosystem regarding communities, which has leveraged an ability of community building in me, and I love to speak regarding all the technical topics. So I'm a technical speaker as well. My technical stack interests includes ranging from cybersecurity to artificial intelligence and data science. Today we are going to discuss a very state-of-the-art and a cutting-edge technology, that is cloud computing. And my organizational affiliations range from UET Peshawar to KPK and then all over Pakistan. And these are mostly social welfare and technical societies and organizations. So let's take it to the next level. Well, start लेते हैं कि cloud होता क्या है, और एक अगर क्विक क्वेश्चन करना चाहूँ मैं अटेंडीज़ में से, अगर कोई विलिंगली मेरा आंसर दे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हम क्लाउड यूज़ करते हैं लफ्ज़, इस क्लाउड का जो मेटाफर है हम ये क्यों यूज़ करते हैं? एनीवन अगर कोई विलिंग हो तो, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि सेशन इंतहाई इंटरेक्टिव हो. अगर कोई विलिंग है तो लेट्स जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक इट अप. वेल, हम चलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से जो क्लाउड का मेटाफर हम सुनते हैं, यानी इवन क्लाउड कंप्यूटिंग के पूरे वर्ड को भी आजकल यूज़ नहीं किया जाता और सिर्फ जो है वो क्लाउड ही यूज़ किया जाता है. यानी पूरे जो क्लाउड कंप्यूटिंग के मेटाफर को हम क्लाउड से रेफ़र करते हैं. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मेटाफर हम ये यूज़ करते हैं चूँकि आपको पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जितनी भी यानी एक प्रॉपर बाइंडिंग हुई हुई होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने यानी एक सॉफ्टवेयर पे काम करना है और आई एम हैविंग नो रिसोर्स एट ऑल. सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपना हार्डवेयर बाय करना पड़ेगा, देन अपना सॉफ्टवेयर, और देन उस पर सब कुछ डिप्लॉय करके जो है वो सेटअप करना पड़ेगा, और देन आई एम गुड टू गो. लेकिन क्लाउड आपको ये ईज़ प्रोवाइड करता है कि आप जस्ट एक पब्लिक क्लाउड से सब्सक्रिप्शन ले लें और देन यू आर गुड टू गो.
यानी इतनी जो हमारी थकावट है उससे हमें ईज़ पे लेके आ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड का मेटाफर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये एक एमॉर्फस क्लाउड है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप कोई मटेरियल लेते हैं, जिस तरह यानी एक स्टोरेज मीडिया है, जिस तरह हमारे पास एसएसडी है। एसएसडी जब आप लेते हैं तो इसकी एक प्रॉपर शेप है और यानी वो एक प्रॉपर सॉलिड स्टेट ड्राइव है। लेकिन जब आप क्लाउड की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपके एंड पे जो नोड है वो एक सॉफ्टवेयर इस्टेब्लिश्ड है, और उस सॉफ्टवेयर के हवाले से अगर बात की जाए तो वो जस्ट जो है वो एक एमॉर्फस क्लाउड है। इस वजह से यानी इस चीज़ को हम क्लाउड से जो है वो तशबीह देते हैं या मेटाफर इसका यूज़ करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से हम जो सबसे अहम बात आती है वो यही आती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली ये चीज़ है कि ऑन डिमांड सिस्टम रिसोर्सेज जब हम कहीं से एक्सेस करते हैं वाया इंटरनेट, उस चीज़ को सीधे लफ्ज़ों में क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। अब सिस्टम रिसोर्सेज से मुराद ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो एक स्टोरेज मीडिया, एक प्रोसेसिंग जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो, इसके अलावा आजकल की दुनिया में जो है वो ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है वो नेटवर्किंग भी आती है, हमारे पास इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्हीं मॉड्यूल्स में, कंप्यूटिंग के मॉड्यूल्स में आती है। इंशाल्लाह हम उसे आगे जाके बहुत डिटेल्ड कवर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मेन मकसद है वो यही है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी डिवाइस एंड रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, अगर आप किसी मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं तो इस चीज़ को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। मैं फिर दोहराता चलूँ कि रिगार्डलेस ऑफ एनी डिवाइस और रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास मैसेंजर पे यानी अब मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल उबैद को एक मैसेज करता हूँ, और हम UI UX को फ़िलहाल जो है वो साइड पे रखते हैं, हम सिर्फ कंटेंट को देखते हैं। यानी मैंने उबैद को एक मैसेज किया, देन मैं अपने उबैद जो है वो अपने PC से अगर उसे एक्सेस करेंगे तो वही मैसेज होगा। UI UX थोड़ा चेंज होगा लेकिन मैसेंजर पे मैसेज वही होगा। और अगर उबैद अपने सेल फ़ोन से मैसेंजर की ऐप यूज़ करते हुए वो मैसेज पढ़ेंगे तब भी यानी उन्हें जो कंटेंट है वही मिलेगा। तो यहाँ पे बात ये क्लियर हो जाती है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी डिवाइस और रिगार्डलेस ऑफ एनी मीडिया, अगर हम किसी मीडिया को एक्सेस करने के काबिल हो जाते हैं तो इस चीज़ को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि वो कंटेंट या वो मीडिया क्लाउड पे होस्टेड है। अब बात करते हैं जो हमारे पास दूसरा कीवर्ड है कंप्यूटिंग के हवाले से। क्लाउड की बात हमें समझ आ गई, अब कंप्यूटिंग पे आते हैं। तो कंप्यूटिंग एक लेमैन की ज़ुबान में अगर बात की जाए ना तो वो यही कहेगा कि कंप्यूटिंग जो है वो स्टोरेज है। लेकिन ड्यू टू द एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग में जो है वो फर्दर मॉड्यूल्स आ चुके हैं, जिस तरह मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टोरेज का आ जाता है हमारे पास मीडिया, यानी जो कंप्यूटिंग में जो यानी प्री रिक्विजिट्स हैं उनमें स्टोरेज आती है। देन हमारे पास जितने भी कंप्यूटिंग के जो हमारे पास बाउंड्रीज़ हैं और जितने भी यानी उसके मेटाफर्स हैं हमारे पास कंप्यूटिंग के, वो सारे यानी इसमें कवर हो जाते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे जस्ट जो है वो आपको स्टोरेज नहीं मिलती, आपको जो है वो कंप्यूटिंग के सारी रिसोर्सेज मिलती हैं, लीडिंग फ्रॉम नेटवर्किंग से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से। इसमें मेन चीज़ जो है वो यही है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी डिवाइस, रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, जब आप किसी मीडिया को एक्सेस करते हैं तो दिस इज़ नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। हम आगे जाते हैं कि विजनरीज़, ऐसे लोग के यानी जिन्होंने टेक्नोलॉजी में जो है वो काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे, एंटरप्रेन्योर ऑफ द सेंचुरी हैं स्टीव जॉब्स। आप सबको पता है कि को फाउंडर थे एप्पल के। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अगर सर्वर पे जो मीडिया स्टोर्ड है उस तक मैं जल्दी पहुंच जाऊं, अब जल्दी पहुंचने का ये मतलब है कि आप जो मैं अब मेरी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं एक PDF फाइल, ये PDF फाइल मेरी हार्ड डिस्क से जो है वो मैंने एक्सेस की हुई है और ये एक लोकल मीडिया पे होस्टेड है। आप लोग चाह के भी जो है वो इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यही फाइल मैं गूगल डॉक्स पे अपलोड कर देता हूँ और आप सबको लिंक जो है वो एक्सेसिबल कर देता हूँ तो आप सब श्योरली इस चीज़ को जो है वो एक्सेस कर लेंगे। अब बात आती है कि किस तरह आपने यानी लोकल से
क्लाउड पे जो है वो इस चीज़ को शिफ्ट कर दिया, और जिस तरह ये चीज़ क्लाउड पे आई तो सबको एक्सेसिबल भी हो गई। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अगर सर्वर पे पड़ा हुआ जो मीडिया है उस तक मेरी रसाई हार्ड ड्राइव की स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो मुझे हार्ड ड्राइव ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यानी ये एक बहुत बड़ी विजनरी और मैं कहूँगा फॉरकास्ट थी क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से। और आज आप सब देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरप्राइजेज़ जो हैं वो लोकल जो हमारे पास मीडिया है उससे निकल के क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड मीडिया पे शिफ्ट हो चुका है। देन हमारे पास पॉल मॉरिट्स हैं। वेल आप सब ने VMware का नाम सुना होगा। VMware हमें वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस, वर्चुअल मशीन बॉक्सेस होते हैं इनके VM बॉक्सेस, और इसके अलावा जो है वो इनके अपने VMware के हवाले से यानी उस सॉर्ट में इनके बिजनेस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो VMware के हवाले से पॉल मॉरिट्स कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ हाउ यू डू कंप्यूटिंग, नॉट वेयर यू डू कंप्यूटिंग। तो यानी यहाँ पे जो अहम फैक्टर है वो यही है कि आप इस फिक्र से आज़ाद हो जाएं कि आपने कहाँ कंप्यूटिंग करनी है, आप जस्ट ये देखें कि आपने क्या चीज़ कंप्यूट करनी है। वेल अगर यहाँ से हम कंक्लूजन भी लेते चले तो यानी जो कंपनीज़ का टर्नओवर और जो कंपनीज़ का सक्सेस मार्जिन है वो इसी चीज़ से आगे चला जाता है, बिकॉज वो एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, और वो फोकस ये है कि वो किस चीज़ को कंप्यूट कर रहे हैं, ना कि वो यानी सिस्टम रिसोर्सेज को देखते जाएं कि हाँ यार अब तो यहाँ पे सिस्टम स्पेस कम रह गई है यहाँ पे यानी स्टोरेज के हवाले से। और देन फिर आपको पता है कि जो हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनमें तो यानी और यानी हज़ारों किस्म के मसले आ जाते हैं। इंशाल्लाह हम उन्हें साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। देन हमारे पास आता है पब्लिक क्लाउड्स। वेल पब्लिक क्लाउड्स का नाम आप सब ने सुना होगा। पब्लिक क्लाउड्स कलेक्टिव नेम है जितने भी टेक्नोलॉजी जाइंट्स के या जितने भी हमारे पास क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं इन सब का एक कलेक्टिव नेम है, उसे हम पब्लिक क्लाउड्स कहते हैं। वेल जिस तरह हमारी जनरेशन जो जनरेशन Z है इसने यानी अपनी आंखों के सामने जो है वो फ्लॉपी डिस्क देखी, देन हमारे पास हार्ड ड्राइव्स आई, हार्ड ड्राइव से फिर आपने देखा USB मीडिया आया, और देन अब जो है वो SSD का ज़माना है, और एंटरप्राइज लेवल पे हम देखें तो क्लाउड का ज़माना जो है वो अपनी स्टार्ट हो चुका है बहुत जो है वो आबोताब से। तो यानी इस सारे जो यानी स्टोरेज मीडिया को मैं फ़िलहाल जो है वो रेफ़र करूँगा। हमने यानी जनरेशन Z ने अपनी आंखों के सामने जो है वो मीडिया की शिफ्ट देखी है। तो जब मीडिया शिफ्ट हो रहा था तो टेक्नोलॉजी जाइंट्स ने इस चीज़ को काफ़ी जो है वो अपने बिज़नेस मॉडल में रखा कि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे करनी है, अपने डाटा सेंटर्स पे। अब इन डाटा सेंटर्स पे जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ से जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग या जो पब्लिक क्लाउड्स हैं उनका एडवेंट हुआ। वेल यहाँ पे अगर बात करते चलें तो आप सबको पता है कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज जिसे हम AWS कहते हैं, AWS इज़ इंडस्ट्री लीडर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यानी जो जितने पहले से इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यानी आज मार्केट उसी की हो रही है। हम इंशाल्लाह पब्लिक क्लाउड्स के जितने भी जो अहम वेंडर्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की पहले बात कर चुका हूँ कि इंतहाई यानी इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की और काफ़ी पुराने हैं यानी इस फील्ड में, और इन्होंने जो है वो काफ़ी मार्केट जो है वो कैप्चर कर चुके हैं अपने साथ, और इनकी काफ़ी प्रीमियम सर्विसेज होती हैं। जिस तरह हमारे पास GCP में बकेट्स मुख्तलिफ यानी GCP के हवाले से होती हैं, तो इनकी बकेट्स भी जो है वो अलहदा होती हैं, E1 E2 के हवाले से होती हैं। इंशाल्लाह इस पर भी हम नज़र डालेंगे। देन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेता चलूँगा। फरहान कुरैशी हैं जो गूगल के कंट्री मैनेजर हैं, ये उन्होंने यानी कुछ स्टैट्स जो हैं वो पाकिस्तान की डेवलपर कम्युनिटी के हवाले से कंपाइल किए हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो 90% डेवलपर पॉपुलेशन है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। तो यानी वी शुड बी प्राउड कि हमारी जितनी भी डिजिटल पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग है, और पाकिस्तान हैज़ मच मोर टू डू। और इसके अलावा अगर ओपन सोर्स की बात करते चलें तो बीइंग एन ओपन सोर्स एडवोकेट मुझे भी इस बात पे इंतहाई खुशी होती है कि वी आर रैंकिंग एट नंबर 6 फॉर ग्लोबल ओपन सोर्स ग्रोथ। इसके अलावा आप सबको पता है कि वी आर द 4th लार्जेस्ट मार्केट फॉर फ्रीलांसर्स, और देन हमारे पास जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के एक्सपोर्ट से जो हमारे पास एक मार्केट कैपिटल आता है वो लगभग 180 मिलियन के करीब आता है। तो
और माशाल्लाह इस इंडस्ट्री के हवाले से जो मेरी थोड़ी बहुत फोरकास्ट है वो यही है कि जब तक आप लोगों जैसे जो है वो टैलेंटेड और क्वालिटी डेवलपर्स या जो क्वालिटी डिजिटल डेवलपर्स हैं हमारे पास, तो इंशाल्लाह ये जो इंडस्ट्री है ये एवरग्रीन रहेगी। देन बात करते हैं एश्योर की। वेल माइक्रोसॉफ्ट भी क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है वो इंडस्ट्री लीडर है, और माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विस है उसे हम एश्योर कहते हैं, और इनकी भी काफ़ी प्रीमियम सर्विसेज होती हैं। इसी तरह हमारे पास ओरेकल जो है वो भी काफ़ी क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है अपना किरदार निभा रहे हैं और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट में। दैन हमारे पास काफ़ी आते हैं, जिस तरह इंटेल ने भी यानी इस चीज़ में अभी कदम रखा है, और देन आईबीएम काफ़ी पुराना है, आईबीएम वाटसन के हवाले से आपने सुना होगा। और आईबीएम की जितनी भी क्लाउड सर्विसेज हैं वो काफ़ी यानी प्रीमियम सर्विसेज हैं। अब बात करते हैं, चूँकि यानी हमारा जो सेशन है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के हवाले से ज़्यादा फोकस्ड रहेगा, बिकॉज रिसेंटली हमारे पास जो है वो फ्लैगशिप प्रोग्राम क्लाउड सीखो सीज़न 2 गुजरा है, तो इंशाल्लाह हम उस हवाले से भी बात करेंगे। तो हमारा मेन फोकस गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म रहेगा। वेल जहाँ पे जो जनरल कंसेप्ट्स होंगे वो बाकी पब्लिक क्लाउड्स के हवाले से भी मैं जो है वो क्लियर करूँगा। अब बात यहाँ पे ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है जस्ट डिप्लॉयमेंट है, और डिप्लॉयमेंट हर कंपनी में सेम तरीके से होती है। थोड़े बहुत यानी जो उनके जो यानी स्पेसिफिसिटी में जितनी भी इश्यूज आते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें सेम तरीके से काम करती हैं। तो जीसीपी जो है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और गूगल ने जितना अपने डेटा सेंटर्स पे जो है वो इन्वेस्ट किया है उसका फल ये है कि आज गूगल जो है वो भी एक प्राइम इंडस्ट्री लीडर है क्लाउड कंप्यूटिंग में। वेल यहाँ पे बात करते चलें कि गूगल बीइंग एन इनकॉर्पोरेशन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने डेटा सेंटर्स पे कर रहा है। और सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने यानी अपनी एक टॉक में कहा था कि हम लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमाइज्ड हार्डवेयर डिज़ाइन करें। अब कस्टमाइज्ड हार्डवेयर के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि टेंसर फ्लो का आप सब ने नाम सुना होगा। टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी है, बल्कि एक पूरा वर्क फ्लो है जो हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ डोमेन्स, जिस तरह मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और बाकी जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर विजन वगैरह है, इनको जो है वो इन्हांस करने के लिए एक बेहतरीन लाइब्रेरी है जिसे हम टेंसर फ्लो कहते हैं। तो अब टेंसर फ्लो के हवाले से और गूगल डेटा सेंटर्स को कनेक्ट करने का मेन यही जो है वो लिंक है कि आजकल आप देखें कि हम लोग सीपीयूज़ के ज़माने में चल रहे हैं, जीपीयूज़ के ज़माने में चल रहे हैं, जिसके कंप्यूटर में 4 या 8 जीबी का ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है, तो हम लोग कहते हैं यार यानी दे आर आउट क्लासिंग और मतलब सरपास कर रहे हैं ये आम मशीन को। तो आप ख़ुद देखें कि एक सीपीयू और जीपीयू के ज़माने में अगर कोई ऐसा कस्टमाइज्ड हार्डवेयर डिज़ाइन होता है कि जो इनसे 40x या 50x फास्टर परफॉर्म कर सकता है, तो इट्स वेरी कमेंडेबल ना। तो यहाँ पे बात आती है कि गूगल ने अपने डाटा सेंटर्स पे इतना इन्वेस्ट किया है कि अब वो लोग अपने कस्टमाइज्ड हार्डवेयर बना रहे हैं जिन्हें हम टीपीयूज़ कहते हैं, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। और आप सबको पता है कि आप खुद सोचें कि अगर यानी वो कस्टमाइज्ड हार्डवेयर जिस पे जो बने ही इस चीज़ के लिए कि उन पे जो है वो टेंसर फ्लो रन हो, तो वो यानी बाकी पब्लिक क्लाउड्स को जो है वो आउट क्लास करेंगे और सरपास करेंगे। वेल यहाँ पे एक वीडियो आप सबको बताता चलूँ ताकि यानी इंगेजमेंट लेवल भी इससे हाई होगा, और काइंडली से गौर से सुनिएगा। वेल उबैद कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है। या श्योर, जी जी श्योर, जी जी क्लियर है, जी राजू भी क्लियर। ओके It's been an yes. I think we're being joined by many people on the live stream as well, so thanks to all of them for joining as well. It's been a really exciting few months for Google Cloud. In March, one of our cloud developer advocates, Emma Haruka Iwal, broke the Guinness World Record for calculating 31.4 trillion digits of pi. That was my reaction as well when it first started. She did it by running Google Compute Engine continuously to read 10 petabytes of data.
It really shows the reliability of the product. I'd hope to read the whole number out here. वेल इस टॉक में जिस तरह आपने देखा कि गूगल क्लाउड एडवोकेट हैं इनकी कोई, और उन्होंने यानी जो पाए के तकरीबन ट्रिलियन डिजिट्स निकाले हैं सिर्फ इस चीज़ पे बेस्ड कि गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग की जो कंप्यूट इंजन है उसे यूज़ करते हुए, यानी इन्होंने इतना रेवोल्यूशनरी काम किया कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो इनका नाम है। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी और इनकी एज अ कंपनी जो है वो इनकी ग्रोथ के हवाले से बात करेंगे। तो मैं काइंडली से फास्ट फॉरवर्ड कर दूं। Drive important changes in our society. Cloud is one of the largest areas of investment for Google as a company. So we are truly on this journey with you together. And we are in it for the very long term. We want to make sure we are a great technology partner to all of you. I'd like to talk to you about 3 areas today. We continue to invest in the infrastructure that made Google successful and that now powers Google Cloud. Our custom server hardware and data centers can bring an enormous amount of computing power to people all over the world. We are in over 200 countries and territories, connected by hundreds of thousands of miles of fiber optic cable, and 50 included about 2 Eiffel Towers. Just to give you a sense of scale in a fun way, 6 years ago, our data center capital plan included about 2 Eiffel Towers worth of steel. This year's plan includes enough steel to build 20 Eiffel Towers. That's a whole lot of steel. वेल आपने इस चीज़ की रिलायबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में देखी कि जो की नोट स्पीकर हैं वो यही कह रहे हैं कि यानी वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन दिस डोमेन, और यानी 2020 में जो है वो इनके इतना स्टील अपनी कस्टमाइज्ड हार्डवेयर पे लगा दिया जस्ट बिकॉज के उस सॉफ्टवेयर की इन्हेंसमेंट पे। आगे जाके इंशाल्लाह इसको और डीपली हम डिस्कस करते हैं। वेल यहाँ पे बात मैं GCP के हवाले से लिंक करता चलूँ कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम गुजरा है अभी, जैसे हम क्लाउड सीखो कहते हैं। वेल क्लाउड सीखो का सीज़न 1 हुआ था जुलाई में, और देन हमारे पास अभी सितंबर अक्टूबर में क्लाउड सीखो का सीज़न 2 हुआ, और माशाल्लाह काफ़ी जो है हमारे पास डेवलपर्स और स्टूडेंट डेवलपर्स ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया, और उम्मीद है कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस प्लेटफॉर्म से। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी अटेंडीज़ हैं फ़िलहाल अब मीटिंग में, इनमें से भी काफ़ी लोगों ने जो है वो इसको अटेंड किया होगा। देन बात करेंगे कि यानी गूगल किन कम्युनिटीज़, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ जो हैं वो गूगल की पाकिस्तान में रन हो रही हैं। वेल सबसे पहले ऐसे जल्दी से लेके गुजरेंगे कि GDGs हैं जो गूगल डेवलपर ग्रुप्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करते हैं, और पाकिस्तान में 4 हैं, GDG पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और GDG कराची, जिस तरह जिसे हम GDG कराची कहते हैं। दैन गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स की बात करते चलें तो सिंपल लफ्ज़ों में GDU से कहते हैं कि ऐसा बंदा जिसने किसी गूगल टेक्नोलॉजी में गूगल को इतना कंट्रीब्यूट किया हो कि इन रिटर्न गूगल उसे एक ख़िताब से नवाजे, जैसे हम GDG या गूगल डेवलपर एक्सपर्ट कहते हैं। वेल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स के हवाले से बात करते चलें तो माशाल्लाह इस बार जो हमारे पास 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान से जो कि DSCs हैं, और जिस तरह मैं DSC हूँ UET पेशावर से, इस तरह हनीफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से हैं, और अशारिब जो हैं वो SMIU कराची से हैं, और हमारे पास उबैद जो हैं वो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम से हैं। तो यानी डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स भी एक अमेजिंग कम्युनिटी है गूगल की। दैन हम वुमेन टेक मेकर्स की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से गूगल का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है वुमेन टेक मेकर्स। और दैन हमारे पास जो ग्रो विद गूगल है या गूगल फॉर स्टार्टअप्स है जो अब रीब्रांड हो चुका है गूगल एक्सेलरेटर पे। ये सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो वेंचर कैपिटलिज्म पे काम करती हैं और यही बिजनेस एनहेंसमेंट पे। वेल दोबारा वापस आते हैं क्विक लैब्स पे। अब क्विक लैब्स क्या चीज़ है? क्विक लैब्स वो अथॉरिटी है जो हमें टेम्पररी क्रीडेंशियल्स देती है ताकि हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकें। सिंपल लफ्ज़ों में यानी ये चीज़ है कि क्विक लैब्स वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम जो है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स टेक अ हैंड्स ऑन, इस पे हम जाते हैं। वेल जो क्विक लैब्स की जब आप साइन इन होते हैं तो क्विक लैब्स आपको कुछ यूँ दिखता है
और फ़िलहाल ये जो है मेरी पब्लिक प्रोफाइल आप सबके सामने खुली हुई है। वेल, पब्लिक प्रोफाइल ये चीज़ होती है कि जितने क्वेस्ट्स आपने कर चुके होते हैं या जितनी लैब्स आप परफॉर्म कर चुकी होती हैं, उसके हवाले से आपको बैजेस मिलते हैं एज अ जेस्चर या एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। देन आपको बताता चलूँ कि क्विक लैब्स यानी व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ क्विक लैब्स, यानी हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को। तो क्विक लैब्स यही चीज़ है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यहाँ पे काइंडली अटेंटिव होइएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के हवाले से या जितने भी हमारे पास पब्लिक क्लाउड्स हैं, क्लाउड पे जब भी आप कोई डिप्लॉयमेंट करते हैं तो वही कोई सिमुलेशन नहीं होती वहाँ पे। ईच एंड एवरी थिंग इज़ बेस्ड ऑन रियल सिनेरियोज। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए गूगल का जो डाटा सेंटर है मुंबई में या हैदराबाद में इंडिया में, वहाँ पे हम एक बकेट बनाते हैं। बकेट ये होता है कि वहाँ पे हम कुछ स्टोरेज स्पेस लेते हैं। तो जब तक आप वो लैब एंड नहीं करते, वो बकेट या वो जो स्टोरेज कैपेसिटी है या जो आपकी फाइल्स उस बकेट में स्टोर हैं, वो वहाँ पे गूगल का जो डाटा सेंटर है मुंबई वगैरह में, वहाँ पे वो प्रॉपरली सेव्ड रहेगा जब तक कि जो है वो आप लैब एंड नहीं करते। ये बात बताने का मेन मकसद यही था कि जो क्विक लैब्स है, ये जो हमें अकाउंट्स देता है, ये प्रॉपर गूगल के वर्किंग अकाउंट्स होते हैं। टेम्पररी क्रेडेंशियल से यही मुराद है कि गूगल के कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं कि जो उन्होंने सिर्फ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए किए हुए हैं। ये जिस तरह हमारा आम गूगल अकाउंट होता है, तो ये एक जनरल अकाउंट होता है, लेकिन जो जीसीपी के या क्विक लैब्स के अकाउंट होते हैं, वो सिर्फ जीसीपी की हद तक हम यूज़ कर सकते हैं। होप सो इस बात की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्विक लैब्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देन हम थोड़ा अगर क्विक लैब्स के हवाले से बात करते चलें तो मैं पहले इस चीज़ को कवर कर लूँ तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से एक बार जो है ना वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेंगे। बात आती है कि अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यार वाई क्लाउड सीखो, यानी क्लाउड सीखो हम क्यों करें ना। बिकॉज अक्सर बिगनर्स का ये क्वेश्चन होता है कि जो लैब्स हैं या जो क्वेस्ट्स हैं वो सारी चीज़ें सर के ऊपर से गुजर रही हैं, तो क्लाउड सीखो करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि क्लाउड इज़ वे कॉस्टी। मैं अभी आपको यानी इसका जो है वो प्रैक्टिकल मुज़ाहिरा भी बता दूंगा, बिकॉज क्लाउड इंतहाई कॉस्टी है। और एक स्टूडेंट डेवलपर या जो एक स्टूडेंट है जो कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है, तो वो इस चीज़ को अफोर्ड कर ही नहीं सकता। हम थोड़ा सा अगर क्लाउड के रेट्स पे बात करते चलें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये मेरा अकाउंट है क्विक लैब्स का, और क्रेडिट्स और सब्सक्रिप्शंस के हवाले से अगर बात करते चलें तो जब क्लाउड सीखो स्टार्ट होता है तो हमें 1 मंथ की एडवांटेज सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। अब यहाँ आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 30 सितंबर को मैंने जो है वो अपनी क्लाउड सीखो की एडवांटेज सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्टिवेट की थी, और वो एक्सपायर हुई है अभी अक्टूबर की 30 को। तो यानी जब आपको एडवांटेज सब्सक्रिप्शन मिलता है तो फिर आपको ये जो क्रेडिट्स हैं ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़िलहाल मेरे पास 23 क्रेडिट्स हैं जो कि अगले 2 माह में एक्सपायर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम हैंड्स ऑन लैब भी एक परफॉर्म करेंगे इन 23 क्रेडिट्स से। अब क्रेडिट्स के हवाले से मैं जहाँ तक इसके रेट्स की बात कर रहा था, तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अगर 1000 क्रेडिट्स जो हैं वो ख़रीदना चाहें, ये तो इसने शायद मुझे जो है वो 15% डिस्काउंट के साथ शो किया हुआ है, लेकिन अगर हम 1000 क्रेडिट्स जो हैं वो लें तो वो तकरीबन $850 के मिलेंगे, जो कि अगर यानी उसे पाकिस्तानी PKR में जो है वो कन्वर्ट किया जाए तो इट्स यानी बहुत बड़ी रकम है, और एक स्टूडेंट डेवलपर के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा क्लाउड सीखो जैसे जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आपको इन्हेंस करते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे कि जो काफ़ी कॉस्टली टेक्नोलॉजीज़ हैं। और आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर एक बंदा जो है वो वेब डेवलपर है तो वो लोकली सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन अगर एक कोई क्लाउड आर्किटेक्ट या कोई बंदा जो क्लाउड को एज अ करियर पाथ लेना चाहता है तो वो सारी चीज़ें वो लोकली नहीं कर सकता, बिकॉज क्लाउड के लिए आपको कोई सिमुलेशन नहीं ज़रूरत पड़ती। क्लाउड के लिए हर चीज़ जो है वो रियल सिनेरियोज़ पे बेस्ड होती है। इस वजह से जो क्लाउड सीखो जैसे प्रोग्राम होते हैं इनमें मस्ट पार्टिसिपेट किया करें, बिकॉज ये आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज़ से जो है वो अवेयर करते हैं जो कि इंतहाई कॉस्टली होती हैं और
इतनी जो है वो फेमिलियर नहीं होती। देन बात आती है स्वैग्स की। वेल पाकिस्तानी को हम तो जो है हम लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड जो है ना वो इसी चीज़ों पे होते हैं, लेकिन स्वैग्स की जहाँ तक बात है तो यही बात है कि स्वैग्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं अपने नेक्स्ट टारगेट के हवाले से। तो जिन्होंने यानी क्लाउड सीको सीज़न 1 या 2 किया होगा तो उन्हें पता होगा कि हमें जो है वो मुख्तलिफ स्वैग्स मिलते हैं। अब बात करते चले उन लोगों की जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग को एज अ करियर पाथ लेना चाहते हैं। तो क्लाउड आर्किटेक्ट्स या जो क्लाउड एक्सपर्ट्स हैं वो बाकी डेवलपर्स से ज़्यादा कमाते हैं। इस बात से यानी बिकॉज आपको एग्जांपल देता चलूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक फुल स्टैक डेवलपर है या कोई जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपर है, तो यानी उसको जो है वो नॉलेज सिर्फ उसी चीज़ की होगी और जो उसका जॉब डोमेन होगा और जो उसकी यानी उस हिसाब से जो सैलरी वगैरह होगी तो यानी वो उसी डोमेन में उसे मिलेगी। लेकिन एक क्लाउड आर्किटेक्ट के हवाले से उसकी सारी जो है वो स्पेशलिटी ये होनी चाहिए कि उसे डिप्लॉयमेंट का पता होना चाहिए। वेल यहाँ पे मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा कि यानी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, बिकॉज आपको पता है कि डेवलपमेंट इज़ अ वेरी प्री रिक्विजिट फेज़। तो एक क्लाउड आर्किटेक्ट को डेवलपमेंट के साथ साथ नेटवर्किंग का पता होना चाहिए, देन उसे डिप्लॉयमेंट का पता होना चाहिए। तो यानी जितनी भी हमारे पास यानी इन शॉर्ट जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन सब का अगर अमेलगम ले लिया जाए या इनका सब का एक मिक्सचर ले लिया जाए तो इट यील्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस वजह से भी जो है वो क्लाउड आर्किटेक्ट्स ज़्यादा कमाते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे फ़िलहाल देख रहे होंगे ग्लास डोर या जिस तरह हमारे पास इंडीड है। तो यानी ये जो दो कंपनीज़ हैं ये हमें मार्केट की जो है वो सैलरीज़ या रेट्स के हवाले से आगाह करती हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ग्लास डोर के रेफरेंस से एक एवरेज जो बेस पे है वो 100 यानी जो उसकी एवरेज है 110,000 यूएस डॉलर्स के लगभग जो है वो एनुअली एक क्लाउड आर्किटेक्ट कमा लेता है। देन फिर उसे जो है वो मुख्तलिफ वेंडर्स के हवाले से, जिस तरह आप अगर AWS में जो है वो स्पेशलाइज्ड हैं तो स्पेसिफिकली यानी उस हवाले से भी आपको बता रहे हैं। लेकिन जो एक एवरेज पे स्केल है वो यानी आपको 6 फिगर्स पर ईयर इजीली मिल जाएगा अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है वो अपना करियर बनाते हैं। वेल बात करेंगे कि क्लाउड इज़ फ्यूचर। तो यानी ये चीज़ यहाँ मेंशन करने की यही ज़रूरत थी कि जिस तरह जनरेशन Z ने सारे मीडिया को जो शिफ्ट होता देखा अपनी आंखों से, तो अगला दौर जो है वो क्लाउड का है। बिकॉज ईच एंड एवरी इंटरप्राइज इज़ नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्लाउड। जस्ट उसकी कई ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है वो यही है कि ईज़ है इस चीज़ में, और आपका जितना भी बड़ा आर्किटेक्चर हो उसको इजीली जो है वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं और उस वर्कफ्लो को जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं क्लाउड की बदौलत। देन क्लाउड वर्सेस लोकल का मैं पहले भी जो है वो डिफरेंस बता चुका हूँ कि ये जो PDF आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हार्ड ड्राइव से जो है वो एक्सेस की हुई है। अगर मैं इसे गूगल जो हमारे पास ये जिस तरह और आजकल वो गूगल वर्कस्पेस हो चुका है, अगर वर्कस्पेस में मैं उसे अपलोड कर देता हूँ तो देन ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाउड पे शिफ्ट हो जाती हैं और हर कोई जो है वो एक्सेस कर लेता है इस चीज़ को। वेल यूज़ केसेस को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम क्विक लैब्स के हवाले से जो है वो अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के हवाले से बात करते हैं। ये जो हमारे पास ये तो हमारी पब्लिक प्रोफाइल हो जाती है क्विक लैब्स की। देन हमारे पास ये जो मेरा अकाउंट है इस पर इसने लिखा है कि 23 क्रेडिट्स। तो जब क्लाउड सीखो या हमें कोई और टियर मिलता है तो उस टियर की बदौलत वो यहाँ पे 1 मंथ का जो एडवांटेज सब्सक्रिप्शन है वो शो होती है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जस्ट 23 क्रेडिट्स हैं बिकॉज जो क्लाउड सीको सीज़न 2 का जो मेरा फ्री टियर था वो 30 अक्टूबर को एक्सपायर हो चुका है। तो हम थोड़ा इसमें डाइव करते हैं डीप। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट्स और सब्सक्रिप्शन की जितनी भी चीज़ें हैं वो शो हो जाती हैं कि यानी अब तक यानी इस अकाउंट में हमने कितना जो है वो इन्वेस्ट किया और कब एक्सपायर हुआ और वो सारी चीज़ें। अब क्रेडिट्स के हवाले से आप सबको एक बात बताता चलूँ कि हर लैब कुछ क्रेडिट्स मांगती है। जिस तरह लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी ये हमारा एक लैब है, ये कॉस्ट कर रहा है 7 क्रेडिट्स और मेरे पास फ़िलहाल 23 क्रेडिट्स अवेलेबल हैं।
तो जब आप क्लाउड सीखो या इस तरह के प्रोग्राम्स में इनरोल्ड होते हैं तो यहाँ पे वो हमसे क्रेडिट्स नहीं मांगता, बल्कि यानी हमारा जो अकाउंट है उसे 1 मंथ की फ्री सब्सक्रिप्शन मिली होती है, और वी आर नॉट टू बॉदर विद ऑल दीज जितनी भी यानी हमारे पास सब्सक्रिप्शन या क्रेडिट्स की चीज़ें हैं, तो हमें इनसे यानी दूर ही रख लिया जाता है। देन फिर बात करेंगे, अब बात आती है कि एक क्वेस्ट क्या चीज़ होता है। वेल क्वेस्ट जिस तरह एक बुक में हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, लाइक माइंडेड चैप्टर्स, यानी एक प्रॉपर एक पाथवे होती है चैप्टर्स की, उसे मिलके कंप्लीट बुक बनती है। तो जो क्वेस्ट होता है वो एक हमारे पास यानी जिस तरह चैप्टर्स होते हैं बुक में, उस तरह हमारे पास हैंड्स ऑन लैब्स की एक पाथवे होती है। अब देखें, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये माई लर्निंग की टैब में जब आते हैं आप, तो यहाँ पे हमारे पास अब ये कह रहा है कि इन प्रोग्रेस आपके 3 क्वेस्ट हैं, जिसमें यानी एक एआई का है और 2 डेटा इंजीनियरिंग के, और यानी ये आपकी सारी चीज़ें बताता है। तो हमने डेटा इंजीनियरिंग पे जब सेलेक्ट किया तो ये इसने ये चीज़ यील्ड की कि डेटा इंजीनियरिंग का जो क्वेस्ट है ये 6 स्टेप्स पे है, यानी इसमें हमारे पास 6 हैंड्स ऑन लैब्स हैं, और उन लैब्स को जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, और उस क्वेस्ट की जो है वो एज अ जेस्चर या एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड हमें एक बैज मिल जाता है जो कि वेरीफाई करता है कि हाँ जी, इस बंदे ने इस चीज़ में जो है वो इसका एक्सपर्टाइज है। तो हम अब हैंड्स ऑन जाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे से मांग रहे 7 क्रेडिट्स, तो इंशाल्लाह हम इसे लॉन्च करते हैं। वेल इसने यहाँ पे अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारा यानी हो सकता है इंटरनेट स्पीड स्लो हो, या जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने यानी प्रॉपर बैंडविड्थ नहीं दी होती। तो मैं यही उन्हें कंफर्म करना चाहूँगा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई सिमुलेशन नहीं होती, हर चीज़ रियल सिनेरियोज में हो रही होती है। आप एक एक जो क्लिक करते हैं वो प्रॉपर जो हो, यानी जहाँ का आप डेटा सेंटर क्लिक करते हैं यानी सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ इन रियल सिनेरियोज हो भी रही होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो टाइम इसी वजह से लग रहा होता है, बिकॉज़ ये लोग हमारे लिए वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो खाली कर रहे होते हैं, या रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोविज़न कर रहे होते हैं। अब ये देखें, क्विक लैब्स ने हमें एक जो है वो टेम्पररी क्रीडेंशियल्स दे दिए। हम गूगल क्लाउड को कंसोल को ओपन करते हैं, और देन जो हमारे पास इसने टेम्पररी यूज़र नेम एक दिया और एक देन ईमेल दिया। हम इससे साइन इन होने की कोशिश करेंगे। वेल वी आर गुड टू गो, और देन ये एक आम गूगल अकाउंट की तरह हमसे थोड़ी बहुत वेरिफिकेशंस या जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं उसका कहेगा, और देन हम इसे लॉन्च करेंगे। और जब तक प्रोविजनिंग में टाइम लगेगा तो हम जो है वो क्लाउड के यूज़ केसेस उतनी देर तक कवर कर लेंगे। वेल इट विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। तो हम चाह रहे हैं कि गूगल के जो क्लाउड के जो हैं वो यूज़ केसेस हम डिस्कस कर लें। अब यूज़ केसेस वो चीज़ है कि यार एक बंदे को क्लाउड की क्या ज़रूरत है। मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने एक काफ़ी भारी सॉफ्टवेयर जो है वो चलाना है, और उसके लिए बैंडविड्थ भी चाहिए, उसके लिए मुझे डेटा रिसोर्सेज भी चाहिए, उसके लिए मुझे काफ़ी कंप्यूटेशनल कंपोनेंट्स चाहिए। तो एक वे तो मेरे पास ये है कि मैं मार्केट में जाऊं और यानी एक सिस्टम ख़रीदूं, दैन उसमें जो है वो अच्छी जो है वो SSD डलवाऊं। वेल मार्केट रेट आजकल 7800 चल रहा है SSD का, M2 जो है वो हमारे पास। तो यानी एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं हार्डवेयर सारा अपना लाऊं, दैन जो है वो सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करूं और दैन उसे अच्छे तरीके से सेटअप और डिप्लॉय करूं। एक तरीका मेरे पास ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं किसी भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर से 2 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन ले लूँ, बिकॉज़ मैंने वो सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ ही अरसे के लिए यूज़ करना है। तो ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि मैं जो पैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे लगाऊंगा, उससे बेहतर ये है कि मैं एक क्लाउड जो प्रोवाइडर है उससे सब्सक्रिप्शन ले लूँ और अपना काम जो है वो फुल ईज़ के साथ कर सकूँ। बिकॉज़ जब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हमें जो अपनी सर्विस देते हैं उसमें हमें बैकएंड के जो जितने भी मसले मसाइल होते हैं उससे यानी उस झंझटों से हम आज़ाद हो जाते हैं। सबसे पहले बात आती है आर्किटेक्चर के हवाले से। तो यानी आर्किटेक्चर को बेहतर तरीके से जो है वो डिप्लॉय करने के लिए
लोकल होस्टिंग्स या जो हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन जो क्लाउड है, क्लाउड बना ही इस चीज़ के लिए है ताकि यानी वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लाई कर सके। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर जो है वो एक स्मॉल या मीडियम बेस्ड जो हमारे पास मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनके लिए नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास इंटरप्राइज लेवल के बड़ी कंपनीज़ हैं उनका वर्क फ्लो और उनका आर्किटेक्चर संभालना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो जब इंटरप्राइज लेवल पे आपका डाटा होता है तो उस चीज़ की वर्क फ्लो को समझने और उस चीज़ को डिप्लॉय करने में काफ़ी जो है वो दुश्वारियाँ आ सकती हैं। इस चीज़ को ईज़ करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे पहले से ये सारे जो हैं वो हमारे पास डोमेन्स मौजूद होते हैं, वी जस्ट हैव टू डिप्लॉय देम। देन बात आती है डेटाबेसेस की। तो वेल यहाँ पे बात हमारे आम जो रिलेशनल डेटाबेस हैं या जो DBMS हम वगैरह हम पढ़ते हैं, हमारे डेटाबेसेस तो यानी इजीली कहीं पे भी होस्ट हो जाएं और बिकॉज उसमें यानी इतने मसले परेशानी या कम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं है। लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, हम जोंग की एग्जांपल लेते हैं। जोंग का जो यूज़र बेस है वो इंतहाई बड़ा है। तो यानी इस चीज़ को, और मैं कहूँगा कि जोंग का जो यूज़र बेस है वो बिग डेटा की कैटेगरी में आता है, बिकॉज उसे जो है वो हम बिग डेटा के गेटवे में ला सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वेलोसिटी ये है कि जो कंज्यूमर का रेट है वो बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम ये कि उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो जोंग जैसे बड़े जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं तो वो अपने वर्कफ्लो को ईज़ करने के लिए बजाय शेयर्ड होस्टिंग बजाय उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होता है। देन बात करेंगे डेवलपर ऑपरेशंस की। तो आप सबको पता है कि डेवऑप्स वो मेथडोलॉजीज़ हैं कि जिनसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ईज़ पहुंचा सकें या उसमें जो उसकी कैटेगरीज जो उसके स्टेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के उसे अलाइन कर सकें। तो डेवऑप्स एक यानी जब एंटरप्राइज लेवल की कंपनी की हम बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एडोबी सिस्टम्स। अब एडोबी के माशाल्लाह जो है वो काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ और इनके सॉफ्टवेयर्स हैं और काफ़ी तो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जिस तरह एडोबी इलस्ट्रेटर आप सबने यूज़ किया होगा, देन हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स और एडोबी XD और एट्सेट्रा। तो यानी जब इतने लेवल के सॉफ्टवेयर्स जब बनाए जाते हैं तो उस चीज़ में डेवलपमेंट तो अपना किरदार अदा करती ही है, लेकिन जो ऑपरेशंस की टीम है उसको भी यानी प्रॉपरली अहमियत दी जाती है। तो इतने बड़े या एंटरप्राइज लेवल पे जब काम हो रहा होता है तो डेवऑप्स इंतहाई अहमियत का हामिल होता है और डेवऑप्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स पे पहले से जो है वो यानी हम कहेंगे सहूलतें मौजूद हैं। तो बजाय इसके कि हम सारी चीज़ खुद करें, कुछ जो ऑपरेशंस हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स खुद करते हैं हमारे लिए। तो डेवऑप्स के लिए बेस्ट जगह जो है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है। देन फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से हम बात करते चलें तो रिसेंटली मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के हवाले से। UBL का आप सबको पता होगा। तो UBL हमारे पास जो बैंक है इन्होंने यानी अपने सारे वर्कफ्लो को ईज़ में लाने के लिए और अपने वर्कफ्लो को जो है वो इन्हेंस करने के लिए अब यानी ये लोग जो है वो कम्प्लीटली क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। यानी एक तो यहाँ पे जो फैक्टर डिपेंड करता है वो ये है कि अपने वर्कफ्लो को ईज़ कर रहे हैं। देन दूसरी बात ये आती है कि सिक्योरिटी, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज में जो कस्टमर ट्रस्ट है वो बनता ही इसी चीज़ पे है कि आप उन्हें रिलायबिलिटी दें। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देन हाइब्रिड क्लाउड के हवाले से बात करते चलें तो गूगल की टेक्नोलॉजी है जिसे हम एंथॉस कहते हैं। तो एंथॉस वो टेक्नोलॉजी है जो कि हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड कंप्यूटिंग को इन्हांस करती है। और यानी हाइब्रिड क्लाउड्स और जो मल्टी क्लाउड्स हैं ये मोस्टली एज कंप्यूटिंग में हमारे जो है वो हमारा यानी इनसे जो है वो वास्ता पड़ता है एज कंप्यूटिंग में, जो कि फिर मैं कहूँगा कि एंटरप्राइज लेवल की चीज़ है। मशीन लर्निंग के हवाले से बात करें, मैं यहाँ पे सिर्फ मशीन लर्निंग को डिस्कस नहीं करूँगा बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी जो हैं वो मॉडर्न हमारे पास डोमेन्स हैं जिनमें मशीन लर्निंग से लेके डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन और यानी टेक्स्ट टू स्पीच एट्सेट्रा जितने भी यानी ये रिकॉग्निशन वाली चीज़ें हैं, इन सारी डोमेन्स के में
क्लाउड कंप्यूटिंग क्या रोल अपना अदा करते हैं, तो मैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के हवाले से बात करूंगा। जैसा कि आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो टेंसर फ्लो है वो एक बेहतरीन वर्क फ्लो है मशीन लर्निंग के लिए। अब आप खुद देखें कि वही लेट्स टेक एन एग्जांपल यहाँ पे कि कंप्यूटर विजन का हमारा एक एल्गोरिदम है या जो हमारा एक मॉडल है जिसे हम कंप्यूटर विजन पे ट्रेन कर रहे हैं कि यानी हमने कुछ चीज़ें जो है वो कुछ इमेजेस ट्रेन करनी है जिसमें यानी कुछ डॉग्स की पिक्चर्स हैं और कुछ कैट्स की पिक्चर्स हैं, और ये सारा जो है काम कंप्यूटर विजन पे डिपेंड करेगा कि यानी वो रिकॉग्नाइज़ करेगा कि ये जो है वो हमारे पास कैट्स की तस्वीरें हैं या ये डॉग्स की तस्वीरें हैं। तो अगर कोई बंदा यानी लोकली या जो है वो ख़ुद इस चीज़ को डिप्लॉय करेगा तो सबसे पहले उसे एल्गोरिथम डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, देन उसे जो है वो मॉडल की ट्रेनिंग और सारे जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं वो खुद अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप क्लाउड पे शिफ्ट होते हैं तो यही चीज़ इंतहाई ईज़ पे चली जाती है, चूँकि हो सकता है कि कितने लोगों ने आपसे पहले वही चीज़ की हो, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एज यानी आप जब उनके कस्टमर बनते हैं तो वो आपको यानी ऐसे डाटा सेट्स जो हैं वो भी फ्री में देते हैं जस्ट बिकॉज के जीसीपी पे ये काम पहले से हो चुका है, तो यानी आपको वो काम दोबारा रिपीट ना करना पड़े। तो यानी मशीन लर्निंग के हवाले से क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक यानी रेवोल्यूशन है मैं कहूँगा। और जैसा कि हमने टीपीयूज़ की बात की, तो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स पे अगर हम टेंसर फ्लो को चलाएंगे तो आप खुद उस चीज़ की जो है वो क्वालिटी, रिलायबिलिटी और इन्हेंसमेंट का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसे जो है वो अपने रिवायती जीपीयूज़ सीपीयूज़ पे जो है वो उस मॉडल को ट्रेन करें। देन माइग्रेशन आती है कि क्लाउड पे जाने के लिए जो मेन चीज़ है वो ज़्यादातर जो फैक्टर होता है वो माइग्रेशन का फैक्टर होता है कि यानी जितने भी हमारे पास कंपनीज़ हैं या जो एंटरप्राइजेज़ हैं वो अपने वर्कफ्लो को ईज़ के लिए जो है वो इस चीज़ पे जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। और नेटवर्किंग के हवाले से मैं बात करता चलूँ तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में पहले से जो है वो नेटवर्किंग के जितने भी डोमेन्स हैं उनको कवर किया गया है ताकि एक बेहतरीन जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस मिल सके। स्मार्ट एनालिटिक्स के हवाले से फिर एक एग्जांपल दूंगा। आप सबको पता है कि गार्टनर हमारे पास एक कंपनी है जो कि एनालिटिक्स की डिजिटल जितने भी हमारे पास वेंडर्स हैं उनको रेट करती है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि राउटर्स जो हैं वो यानी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बनाती हैं। अब जो हमारे पास थोड़ा अच्छे लेवल के राउटर्स आते हैं तो वो सिस्को बनाती है, और इस तरह बाकी कंपनीज़ भी जो हैं वो सिजनर बनाती है, और इस तरह की जितनी भी यानी नेटवर्किंग से रिलेटेड डोमेन्स हैं कंपनीज़ की वो ये चीज़ें राउटर्स वगैरह और स्विचेस वगैरह बनाते हैं। लेकिन गार्टनर को अब किस तरह पता चलता है कि यानी ये चीज़ जो है वो इससे बेहतर है? तो इनके जो स्मार्ट एनालिटिक्स हैं वो इतने हैवी एल्गोरिदम्स यूज़ करते होंगे कि यानी अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने वो राउटर यूज़ किया, देन उबैद ने वो यूज़ किया, तो यानी हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा वो डिफरेंट होगा। तो इन सारे जो हमारे पास जितने भी फैक्टर्स हैं इनको कॉप अप करने के लिए गार्टनर जैसी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग पे शिफ्ट होगी, और देन अपने जो उनके हैवी एल्गोरिदम्स हैं उनसे सारे डाटा को गुजारेगी, और तब जो है हमें वो एक स्मार्ट एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगी। होप सो यू पीपल गॉट दिस पॉइंट। देन हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हवाले से सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो यानी ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अहम अपना जो है ना किरदार अदा करते हैं। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में ये चीज़ें भी हमें पहले से मिलती हैं। बिग डाटा के हवाले से मैं पहले बात कर चुका हूँ, टेलीकॉम सेक्टर की मैंने आपको एग्जांपल दी जाऊँ की कि यानी बिग डाटा के गेटवे में शामिल जब कोई चीज़ होती है तो उनके डेटाबेसेस और उनका जो वॉल्यूम और वेलोसिटी वाला फैक्टर है वो ट्रिमेंडस रेट पे, एक्सपोनेंशियल रेट पे इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो इस चीज़ को कॉप अप करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी जो है वो हमें यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इंटरप्राइज़ लेवल की फिर वही बात आ जाती है कि माइग्रेशन के लिए इंटरप्राइज़ लेवल जो हमारे पास कंपनीज़ हैं वो क्लाउड पे शिफ्ट होती हैं। देन आप सबको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे जो अहम चीज़ है वो डेवलपमेंट और टेस्टिंग की है कि यानी एक सॉफ्टवेयर कैसा काम कर रहा है और उसमें यानी बग फिक्सेस और जितनी भी हमारे पास टेस्टिंग के फेजेस हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो यानी उन चीज़ों को ईज़ पे लाने के लिए हमारे पास क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं।
इन अ नटशेल मैं आप सबको बताता चलूँ कि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आर द वन स्टॉप शॉप, यानी आपकी जितनी भी डेवलपमेंट की नीड्स हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आर जस्ट वन स्टॉप शॉप। और गेमिंग के हवाले से बात करते चलें तो यानी एक बहुत बड़ी डिसरप्शन है इस इंडस्ट्री में। आप सबको पता होगा कि गूगल स्टैडिया है, इस तरह यानी जो हमारे पास रेवोल्यूशनरी जो गेमिंग कंसोल्स आ रहे हैं, कंसोल्स तो नहीं लेकिन एक गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यानी इन चीज़ों पे गेमिंग के हवाले से अगर बात की जाए कि यानी क्लाउड कैसे गेमिंग को जो है वो डिसरप्ट कर सकता है, तो मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ ऑनलाइन गेमिंग में आजकल आपको देखने को मिलती है वो प्लेयर के डेमोग्राफिक्स या जो प्लेयर की डायनामिक्स हैं वो डिपेंड करती हैं। तो अगर आप एक जो है वो चीज़ क्लाउड पे होस्ट करेंगे वो ज़्यादा रिलायबल होगी और ज़्यादा जो है वो सिक्योर भी होगी। अगर रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो हमें कम लैग्स देखने को मिलेंगे, हमें बेटर यूज़र एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो ज़ाहिर है कि एक जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिस तरह हमारे पास टेंसेंट गेमिंग वगैरह है, जो कि यानी पबजी और मुख्तलिफ गेमों को जो है वो इन्हेंस कर रही हैं, तो यानी ऐसे जो बड़े वेंडर्स हैं वो चाहेंगे कि अपनी गेम्स जो हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे शिफ्ट करें। आईओटी की बात करेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिस तरह हमारे पास सेंसर्स की जो है ना दुनिया वो बढ़ रही है, आज आप देख रहे हैं कि सेंसर्स जो हैं वो आज हमारे हाउस होल्ड में भी इजीली आप सबको देखने को मिलते हैं। तो आईओटी की इंडस्ट्री एक डिसरप्शन जिस तरह यानी इसमें क्रिएट हो रही है, तो ये यानी हैंडल करना और इसका वर्क फ्लो जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। देन हमारे पास इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह आप सबने रेस्पबेरी पाई और जो हमारे पास आर्डिनो के जो मुख्तलिफ यानी आर्डिनो ऊनो और दूसरे तरीके के जो हमारे पास होते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स, ये यूज़ किए होंगे आप सबने। तो यानी आईओटी को हैंडल करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आपको ये जो है वो यूटिलिटी ऑफ़र करते हैं कि आईओटी की जो वर्क फ्लो को काफ़ी बैलेंस्ड और इन्हेंस्ड वे में ये प्रोवाइड करते हैं। देन मीडिया एजेंसीज़ की बात करेंगे तो आप सबको पता है कि जिस तरह टेलीकॉम सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह एक मीडिया सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारी जिस तरह यानी बड़े मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स की एग्जांपल लेते हैं, जियो न्यूज़ है या जो ARY वगैरह हैं, तो यानी इनका जो डाटा वर्क फ्लो है, इनको एक तो इमीडिएट चीज़ चाहिए और एक काफ़ी रिलायबल और सिक्योर चीज़ चाहिए। तो इस चीज़ को कॉप अप करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आपको मीडिया सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ईज़ हो सके। मोबाइल डेवलपमेंट और जो बाकी डेवलपमेंट के हवाले से ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ तो वही बात है, मैंने डेवलपमेंट से पहले भी बोल दिया कि क्लाउड इज़ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर डेवलपमेंट नीड्स। सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे तो यहाँ पे एक जनरल एस्पेक्ट भी आता है कि अगर कोई बंदा कहता है कि यार हाँ भाई मेरी फाइल्स तो जो हैं वो गूगल के डाटा सेंटर में है, तो यानी ये चीज़ एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी देती है कि हाँ भाई मेरा तो डाटा जो है वो गूगल के पास है, तो जाहिर सी बात है ये सिक्योर होगा। ये चीज़ इनके जो है वो कस्टमर बेस को भी बढ़ाती है और इन रिटर्न हमें भी जो है वो यानी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। स्टोरेज के हवाले से पहले भी बात हो चुकी है कि इनके अपने कस्टम हार्डवेयर हैं और आपका जो यानी स्टोरेज फेलियर जिसे हम कहते हैं, जिस तरह यानी खैर SSD में तो इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन हार्ड ड्राइव्स की जो नॉर्मल लाइफ होती है यानी वो 1 साल या 1.5 साल होती है, तो यानी इसके बाद वो वियर एंड टीयर की प्रोसेस से गुजर के जो है वो डेटा लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी अगर आप स्टोरेज के हवाले से क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे तो दे आर यानी इंडस्ट्री लीडर्स। वेब होस्टिंग और कंप्यूटिंग के हवाले से बात करेंगे तो एक ले मैन जो है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की तरफ तभी शिफ्ट होगा, मैं एंटरप्राइज़ की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, वो क्लाउड पे तब शिफ्ट होगा जब उसे एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर उसका बजट काफ़ी अच्छा है तो वो अपनी वेबसाइट अगर क्लाउड पे शिफ्ट करेगा तो यानी वो सारे झंझटों से आज़ाद हो जाएगा। हमारा जो है यू जी जी राजा भाई अजान का गैप ले लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। जी जी ठीक है। जी ओके।
Well, Ubaid, should I carry on? श्योर जी जी कंटिन्यू करें वेल तो यहाँ पे हम जो है वो जी सी पी एसेंशियल्स हमारे पास रह गए। जी सी पी एसेंशियल से मुराद यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के जितने भी कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हम इवन बल्कि हम पैरेलल में चलेंगे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो इंतहाई लाजमी होता है, बिकॉज जस्ट जो है वो अगर थ्योरी से बात हो तो वो नहीं हो पाती। तो जितना भी हमारा एक्सपीरियंस हमने गेन किया था क्लाउड सीखो के जो सीजन्स हैं उनसे, या अपार्ट फ्रॉम देम जितना भी एक्सपीरियंस था क्लाउड के हवाले से, तो वो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको जो है वो बताएंगे। देन डैशबोर्ड, जब अब बात आती है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो ब्लू स्क्रीन और ये जो वाइट उसके यानी मॉड्यूल्स हैं, ये जो स्क्रीन है इसे हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का क्लाउड कंसोल कहते हैं। यानी ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। आप GUI से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। देन आप इसे CLI कमांड से भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। CLI हमारे पास एक्टिव जो है वो क्लाउड शेल होता है, जो कि यानी एक प्रॉपर इंस्टेंस पे होस्ट होता है, जिस तरह एक प्रॉपर लिनक्स इंस्टेंस पे होस्ट होता है। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक तो यानी GUI से और एक CLI से। जब तक CLI खुलता है तो हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं, और जितनी भी GCP एसेंशियल्स हैं, GCP की जो कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें हम बात करते हैं। डैशबोर्ड पे आपका प्रोजेक्ट होगा, और जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ये एक एंटरप्राइज यूज़ करती है तो वहाँ पे यानी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये तो अब एक तरह का ये जो है वो एक डमी अकाउंट हमें दिया गया है क्विक लैब्स की तरफ से, ताकि हम यानी ये वाला लैब परफॉर्म कर सकें। तो हमारे पास प्रोजेक्ट नेम क्विक लैब्स GCP और जो उसका सीरियल नंबर है ये होगा। और वेल डैशबोर्ड की जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ और आई एम नॉट अ डेवलपर एट ऑल। तो यानी मुझे जो है वो टेक्निकलिटीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड पे सब कुछ समझ आ जाएगी। इवन जो बिलिंग का मॉड्यूल है वो भी यहाँ पे है। रिसोर्सेज में फ़िलहाल हमने कोई रिसोर्स अभी यूज़ नहीं की, ना ही हमने कोई जो है वो वहाँ पे स्पेस ली है, ना ही कोई प्रोसेसिंग की है। इस वजह से रिसोर्सेज का जो टैब है वो खाली है। तो इंशाल्लाह हम बात करते हैं इस पर। अब इस टैब में हमारे पास ऑन द वेरी जो हैमबर्गर पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेविगेशन मेन्यू आ जाती है। इस नेविगेशन मेन्यू में सबसे पहली चीज़ जो है वो मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस वो चीज़ है कि इससे यानी जितने भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। बिलिंग का इंशाल्लाह हम और भी डिटेल में बात करेंगे। बिलिंग लेमैन वर्ड्स यही है कि जितनी रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं क्लाउड में और उस हिसाब से आपका बिल बनता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे यानी मंथली सब्सक्रिप्शन के हवाले से जिस तरह हम अपना यानी DSL वगैरह का जो है वो बिल देते हैं कि यानी एक प्रॉपर लिमिट होती है, यानी हाँ भाई आपने 2800 जो है वो पर मंथ देना है। लेकिन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आपको इस चीज़ में जो है वो काफ़ी ईज़ प्रोवाइड करते हैं कि यानी आप जितना जो है वो इस्तेमाल करेंगे उतना आप बिल देंगे। यानी जितनी रिसोर्सेज आप कंज्यूम करेंगे उतना ही आप बिल देंगे। APIs और सर्विसेज के हवाले से हम बात करते चलें तो मैं कहूँगा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म APIs इंटीग्रेशन में इंडस्ट्री लीडर है, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ APIs। तो यानी इस चीज़ से जो है वो हमारे जो डेवलपर्स हैं वो अक्सर डरते हैं कि यानी किसी चीज़ पे हम काम कर रहे होते हैं तो उस चीज़ की API हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यानी जो हमारे पास APIs की इंटीग्रेशन है वो GCP में एक्सेप्शनल लेवल की है। देन जो हमारे पास सपोर्ट है, तो सपोर्ट में कहूँगा इंतहाई जो है वो आइकॉनोक्लास्ट लेवल की है। बिकॉज जब हम यहाँ पे इनकी जो है वो प्रॉपर टीम्स बैठी होती हैं क्विक लैब्स की, और ये हमें जितने भी हमारे यानी इश्यूज़ होते हैं तो यानी उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉपर जो है वो टीम हमें अलॉट कर दी जाती है, कोई एक बंदा। तो जिस तरह रिसेंटली क्लाउड सीखो में काफ़ी मसले आ रहे थे, तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें इजीली हेल्प मिल जाती थी। और इवन अगर आपका अकाउंट भी जो है वो रिकवर कराना हो तो इट विल जस्ट मेयरली टेक अबाउट 10 to 15 मिनट्स। IAM और एडमिन के हवाले से मैं इंशाल्लाह बाद में बात करता हूँ। सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो हमारे पास प्रॉपर एक डिटेल्ड है।
अब मैंने जो बात की थी एंथोस के हवाले से, तो एंथोस एक इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हम यूज़ ही इसी चीज़ पे करते हैं कि जो हमारे पास मल्टाई और हाइब्रिड क्लाउड की टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। तो यानी ये जस्ट जो है वो एंटरप्राइज लेवल का एक सॉफ्टवेयर है। अब बात आती है समझने की कि कंप्यूट इंजन क्या चीज़ है। हमारे पास यहाँ पे GCP एसेंशियल्स में जो सबसे पहली चीज़ है वो है ही कंप्यूट इंजन के हवाले से। क्लाउड कंसोल आप सबको बता दिया कि यानी जो GUI है क्लाउड का, उसे क्लाउड कंसोल कहते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइसिंग की कि यानी जो हमारे पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरफ से प्राइसिंग होती है वो कैसी होती है। एक तो यानी अगर आप एक अकाउंट बनाते हैं और उससे क्विक लैब्स को एक्सेस करते हैं और देन क्विक लैब्स आपको ये इस चीज़ की एक्सेसिबिलिटी देती है कि आप GCP यूज़ करें, वो आपका फ्री ट्रायल होता है। 1 मंथ का आपको फ्री ट्रायल दिया जाता है जिसमें तकरीबन आपको 360 क्रेडिट्स दिए जाते हैं और उसमें यानी आप अप्रॉक्सीमेटली जो है तकरीबन 50 to 60 लैब्स परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप यानी 1 मंथ पूरा होने पर वो जो आपका जब फ्री ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं वो वहाँ पे पॉज कर दी जाती हैं और जब आप जो है वो सब्सक्रिप्शन नहीं लेते या क्रेडिट्स नहीं लेते तो आप वहाँ से आगे काम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। अब फ्री टियर के हवाले से बात करते हैं। तो यानी गूगल बीइंग अ टेक जाइंट अपने कस्टमर्स को यानी इंतहाई फैसिलिटेट करता है कि यानी अगर आपने सब्सक्रिप्शन या क्रेडिट्स ले लिए एक बार तो यानी आपको वो इस चीज़ की जो है वो कोटा देगा। कोटा का यानी ये मतलब होगा कि हमारे पास जो अगर आपने स्टोरेज 4 जगह 4 बकेट्स बनानी है तो गूगल कहेगा कि आपने यानी सब्सक्रिप्शन ली हुई है हमारी, तो आपको आपकी फ़र्स्ट 50 स्टोरेज बकेट्स जो हैं वो हम फ्री में देते हैं। तो यानी गूगल बीइंग एन इनकॉर्पोरेट इस चीज़ में जो है वो अपने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छी तरह फैसिलिटेट करते हैं। देन हम इंशाल्लाह इसको फर्दर करते हैं। सबसे पहली बात आती है कंप्यूट के हवाले से। कंप्यूट का वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि यहाँ पे सारी जितनी भी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं या जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं वो इसी टैब में होनी चाहिए। तो वही बात है कि कंप्यूट के इंजन में हमारे पास सबसे पहली चीज़ ऐप इंजन आती है। अब ऐप इंजन से आप वो सारी चीज़ें कर सकती हैं। अब अगर मैं आपको बताता चलूँ इंस्टेंसेस की टैब अगर खुल जाए, बिकॉज GCP को चलाने के लिए जितने भी हमारे पास क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं इनके लिए काफ़ी जो है वो बेहतरीन आपका खैर एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो तो बेस्ट रहता है, बिकॉज हर चीज़ जो है वो रियल सिनेरियोस पे काम कर रही होती है। अब यहाँ पे ऐप इंजन का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन के लिए जो यानी जितना भी सॉफ्टवेयर वाला सारा मसला है वो यहाँ पे हम हल करते हैं। देन हमारे पास कंप्यूट इंजन आता है। कंप्यूट इंजन ये है कि हम इसमें इंस्टेंसेस बनाते हैं। अगर आप में से किसी ने डुअल बूट किया हो या अगर VMware यूज़ किया हो तो VMware में हम जो है वो 3-4 अप टू 3 और 4 जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली हम वर्चुअल मशीन की जो इंस्टेंसेस होती हैं और वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्लाउड पे भी वही टेक्नोलॉजी जो है वो वही वर्कफ्लो चलता है। अब यहाँ पे अगर हम एक VM इंस्टेंस आपके सामने बनाता चलूँ तो यानी ये प्रॉपर मेरे से पूछेगा कि इसमें मैं अभी आपको बताऊं कि यानी ये मेरे से पूछ रहे कि US के सेंट्रल 1 जो है वो इस रीजन में आपको चाहिए, किस रीजन में चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो है वो अपना रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं एशिया पैसिफिक के यहाँ पे मुंबई का जो है एशिया साउथ 1 मुंबई ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। जोन मेरी जो है वो एशिया C है, तो दैट्स गुड टू गो। देन हमारे पास यहाँ पे अब ये कह रहा है कि आपको किस लेवल की मशीन चाहिए, यानी आपका जो CPU है वो किस लेवल का हो। तो हम चाह रहे हैं कि 2nd जनरेशन का E2 ठीक है हमारे पास। अब बात आती है ये मेरे से पूछेगा कि रैम कितनी लगानी है, ये सारी चीज़ें। तो यानी रियली लव्ड दिस एक्सेसिबिलिटी और ये जो फ्रीडम हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म्स देते हैं, इट्स रियली बियॉन्ड द लिमिट्स। अब देखिए हमें ये ख़ुद बता रहा है कि 64 GB का यानी ये मुझे दे रहा है जो है वो एक GPU है। तो यानी आप ख़ुद सोचें कि हमारे जो वर्क स्टेशंस भी होते हैं उनमें 16 GB या बहुत ही कोई रेयर केस में 32 GB का रैम हमें देखने को मिलती है। तो यानी यहाँ पे आप वो सारे टास्क कर सकते हैं
लेकिन यहाँ पे एक साथ अब ये चीज़ भी देख रहे होंगे कि अब यानी जो हमारी प्राइसिंग थी वो यानी 0.0 से 317 यूएस डॉलर्स पे चली गई है। तो वो बात भी है कि यानी कॉस्टी हैं ये चीज़ें, लेकिन ये आपको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ भी देती हैं। दैन अब सॉफ्टवेयर की बात आती है तो मेरे से पूछ रहे हैं कि यानी इसमें आप कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाह रहे हैं। इसमें अगर मैं चेंज करके आपको बताऊं तो वेल इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाना है, लेकिन हमारे पास यानी प्रॉपर बता रहा है कि डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जितने भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डालें, विंडोज़ का सर्वर डालें, उबंटू डालें, या जितने भी यानी हमारे पास हैं ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इनको यानी डील करता है। तो यानी मेन बताने का मकसद ये था कि कंप्यूट इंजन वो जगह है जहाँ पे हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। कुबरनेटीज़ इंजन के हवाले से बात करते चलें तो आप सबको डॉकर और कंटेनराइजेशन सिस्टम का पता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कंटेनराइजेशन की इंतहाई अहमियत है। तो गूगल ने भी जो है वो एक ओपन सोर्स है कुबरनेटीज़ इंजन, गूगल इसे यूज़ करता है अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। इसके अलावा क्लाउड फंक्शंस की बात आती है तो क्लाउड फंक्शंस वो सारी चीज़ें हैं कि यानी जो ऑटोमेटिव फंक्शंस इनबिल्ट हैं और आप ख़ुद भी बना सकते हैं अपने वर्कफ्लो को और इन्हेंस करने के लिए। VMware का जो इंजन है इसमें यानी वही सारी वर्चुअल मशीन्स को आप किस तरह यानी और कन्फिग्योर करेंगे। स्टोरेज के हवाले से यानी अब हम लोग कंप्यूट का जो है वो कवर कर चुके, हम स्टोरेज पे चलते हैं कि स्टोरेज में क्या क्या हमारे पास जो है वो यूटिलिटीज़ हैं। फाइल स्टोर के हवाले से बात आती है तो यानी जो हमारा जितना भी फोल्डर या जो हमारे पास डायरेक्टरी सिस्टम है उसको हैंडल करने के लिए। देन स्टोरेज के हवाले से अगर मैं इसके पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो है वो ये मुझे कहेगा कि फ़िलहाल आपका कोई भी जो है वो स्टोरेज बकेट नहीं बनी हुई। तो मेन चीज़ जो आपको समझाने की है वो यही है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे जब आप हार्डवेयर रिसोर्सेज को टैकल करते हैं तो जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे हम इंस्टेंस कहते हैं या VM इंस्टेंस कहते हैं, और जब आप स्टोरेज की बात करते हैं तो उसे हम स्टोरेज बकेट कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्रिएट बकेट, लेकिन फ़िलहाल मैंने कोई बकेट नहीं क्रिएट करनी बिकॉज हमने जो है वो वी आर जस्ट आउट ऑफ टाइम, तो हम थोड़ा इसे तेज़ लेके चलेंगे बिकॉज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो इंशाल्लाह क्लाउड सीको सीज़न 3 भी आ रहा है तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसमें भी प्रॉपर तरीके से जो है वो मिल जाएगा। डेटा ट्रांसफ़र के हवाले से फिर यानी इसकी काफ़ी सहूलतें हैं। डेटा बेसिस पे अब आ जाएँ तो जिस तरह हमने बिग डाटा की बात की थी पहले, तो बिग डाटा को फैसिलिटेट करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब मैं आपको स्पैनर के हवाले से बताता चलूँगा, जो डेटा स्टोर है तो यानी ये सारी चीज़ें आपको लोकली या शेयर्ड होस्टिंग पे कभी भी नहीं मिल सकती बिकॉज इनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ओपन सोर्स नहीं होती। तो यानी अगर वो किसी एक वेंडर ने बनाई है तो आपको वहाँ पे ही वो चीज़ मिलेगी, और यहीं पे जो है वो जो हमारे पास पब्लिक क्लाउड्स हैं जिस तरह AWS, एजोर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो इसी चीज़ पे डिफरेंशिएट करते हैं कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज तीनों में सेम होंगी, लेकिन GCP को क्या चीज़ अपर हैंड देती है वो ये है कि जो इनके मैं पहले भी बात कर चुका हूँ TPUs यानी जो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो यानी इनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। डेटाबेसेस के हवाले से टेलीकॉम सेक्टर जो है वो इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि नेटवर्किंग की जितनी भी डोमेन्स हैं यानी जितनी हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं या हाइब्रिड कनेक्टिविटी है उस चीज़ को फॉलो करने के लिए नेटवर्क इंटेलिजेंस है, ये यानी एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और ये यानी हम रेयरली देखते होंगे। तो नेटवर्किंग की सब डोमेन्स यहाँ पे कवर हो जाती हैं। देन हमारे पास ऑपरेशंस, मैंने डेवॉप्स की बात की थी तो यानी जितने भी ऑपरेशंस हैं वो आप यहाँ से इजीली कवर कर सकते हैं। और वही बात है कि डेवॉप्स में एक तो डेवलपर है ना और साथ एक ऑपरेटर है, तो जो ऑपरेटर है उसे डेवलपमेंट की नॉलेज ना भी हो तो वो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे गुड टू गो है। दैन हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो टूल्स आ जाते हैं जो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हैं। दैन बिग डेटा की डोमेन में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि और IoT कोर के हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 3-4 मैं कहूँगा सोशल जो है वो टैब्स हैं उनमें फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर आता है कि यानी जितना भी हेल्थ केयर के हवाले से जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं या जो लाइफ साइंसेज और इन चीज़ों पे हो रही हैं तो इसके लिए भी प्रॉपर यानी एक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारी एक कंपनी है जो कि यानी हेल्थ केयर या लाइफ साइंसेज की डोमेन में काम करती है, हम यानी उनके प्रॉब्लम सिनेरियो सॉल्व करते हैं। तो बीइंग अ क्लाउड प्रोवाइडर गूगल हमें इस चीज़ की जो है वो फ्रीडम देता है कि हम बजाय ज़ीरो से काम स्टार्ट करें, हेल्थ केयर की यानी इनके पास प्रॉपर डाटा सेट्स होंगे और प्रॉपर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बिल्ट होगा। तो यानी हमें वी डोंट नीड टू क्रिएट या इन्वेंट द व्हील अगेन।
देन हमारे पास AI आता है। तो AI के हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि GCP जो है वो अपर हैंड है इसी हवाले से, बिकॉज कि जो टेंसर फ्लो वाली मैं बात तीसरी चौथी बार दोहरा चुका हूँ कि AI यानी इस वजह से काफ़ी ऊपर है। देन गेम सर्वर्स की बात हमने की। गूगल मैप्स के हवाले से ये है कि जो गूगल मैप्स की API है वो आप कहीं पे भी यानी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने किसी भी उसमें। अब पार्टनर सॉल्यूशंस की बात आती है, तो यानी गूगल के जितने भी पार्टनर्स हैं, जिस तरह लेट्स टेक एन एग्जांपल मर्न स्टैक डेवलपर है अगर हमारे पास कोई, तो यानी उससे MongoDB में जो है वो एक्सपर्टाइज होगी उसकी। अगर वो किसी कंपनी में किसी एंटरप्राइज कंपनी में जाता है और वहाँ पे अगर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है, चूँकि MongoDB जो है वो गूगल का पार्टनर है, तो वो जो हमारे पास मर्न स्टैक डेवलपर होगा उसको इस चीज़ पे अपर हैंड होगा कि हाँ भाई मैंने तो MongoDB पहले से यूज़ किया हुआ है, अब तो APIs इंटीग्रेट करके जो है वो हम एप्लीकेशन एक फास्टर रेट पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी पार्टनर सॉल्यूशन आपको इस चीज़ में जो है वो काफ़ी जो है वो लेवरेज देते हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो था हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था। और मैं अगर इसे रीस्टोर करूं तो हमारे पास यानी अब हम किस पे आ चुके हैं, CLI पे। CLI की एक दो कमांड्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो यानी सेटअप करते हैं कंसोल को कि यानी तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार जो क्लाउड सीको की लैब्स थी वो काफ़ी मुश्किल थी ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर आप इस मैनुअल को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इससे गो थ्रू हो जाएं तो आपको यानी किसी यूट्यूब वीडियो या किसी भी जो है वो ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। दीज डॉक्स आर रियली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स। और यहाँ पे जितने भी कोड स्निपेट्स हैं वो पहले से दिए होते हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि क्लाउड पे आपने जस्ट डिप्लॉयमेंट करनी होती है, तो हम यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे और जो है वो इसे लेके जाके पेस्ट करेंगे। तो अभी यानी ये जो मैंने कमांड दी थी इसका मेन मकसद यही था कि जी क्लाउड जो है वो हम रेफ़र करते हैं कि इसके टर्मिनल को ऑथ आप सबको पता है कि हम यूज़ करते हैं कि ऑथराइजेशन के लिए, और लिस्ट कि यानी लिस्ट में जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स थे मेरे इस इंस्टेंस में उनको ऑथराइज़ कर दें। तो यानी एंटरप्राइज लेवल पे जब होगा तो उस लिस्ट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें हम फिर डीपली नहीं जाते और जस्ट वो है वो देखते हैं कि मेन पर्पस क्या था इस लैब और इस क्वेस्ट का। इस लैब का नाम था डेटा इंजीनियरिंग, और जो लैब अभी हम परफॉर्म कर रहे थे इसका मतलब था कि जिस तरह हमारे पास CI/CD जो पाइपलाइंस हैं उन पाइपलाइंस को जो है वो हम ईजीली जो है वो डिप्लॉय करें। किस चीज़ को यूज़ करते हुए? क्लाउड का डाटा प्रेप के हवाले से यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यानी जो डाटा में उसकी सर्विसेज हैं उसमें हमें डाटा प्रेप भी जो है वो मुहैया होता है। तो यानी इन चीज़ों को यूज़ करते हुए कोई कंपनी जो है वो काफ़ी लेवरेज क्रिएट कर सकती है अपने कंपेटिटर्स के हवाले से। डेवलपर और मैनेजमेंट टूल्स की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हमारे पास यानी हर डोमेन में यानी AI से लेके कंप्यूट इंजन तक हर डोमेन का जो है वो मुख्तलिफ हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमें आम दिनों में देखने को नहीं मिलती। कंप्यूट प्लेटफॉर्म पे बात हो चुकी है, AI प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ सर्वरलेस प्लेटफॉर्म वो चीज़ है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरी एक एप्लीकेशन है जो कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, फ्रंट एंड उसका जावास्क्रिप्ट पे है, बैक एंड Node.js पे है। और यानी अगर मैं लोकली उस चीज़ को करूँगा तो मुझे बैक एंड और जो डेटाबेस है उससे भी कनेक्टिविटी खुद करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो SaaS है, जैसे हम सर्वरलेस प्लेटफॉर्म कहेंगे, सर्वरलेस प्लेटफॉर्म जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में हमें मिलता है, उसकी खूबसूरती ही यही है कि आपने जस्ट अपना कोड देना है और क्लाउड फंक्शंस रन कर देने हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है। तो यानी हमें बैक एंड या डेटाबेस कनेक्टिविटी की कोई उस झंझट से आज़ाद हो जाएंगे और जस्ट जो है हमने अपनी एप्लीकेशन देनी है। द रेस्ट ऑफ वर्क विल बी डन बाय गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो डेटा और स्टोरेज प्लेटफॉर्म की पहले बात हो चुकी। अब यहाँ पे एक छोटा सा फाइनली एक बात है कि फायरबेस, आप सब ने फायरबेस यूज़ किया होगा। फायरबेस गूगल की वो टेक्नोलॉजी है या वो प्लेटफॉर्म है जो कि मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को होस्टिंग और उनके जो बैकएंड है उसको सपोर्ट करने में मदद कर देता है। अब बात करते चलें कि ये बात इंतहाई दुरुस्त है कि GCP फायरबेस इज़ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म अंडर द हुड, कि यानी जो फायरबेस है वो भी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ही है लेकिन उसको हम एक दूसरे मैकेनिज्म से फ्लो करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अपने
सेम अकाउंट से फायरबेस की अगर कोई जो है वो एप्लीकेशन उसका बैकएंड उस पर होस्ट करता हूँ तो मैं वही डेटा जो है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि मैकेनिज्म चेंज होता है तो यानी हम उस चीज़ को जो है वो पहचान नहीं सकते। लेकिन फायरबेस का जितना भी मैकेनिज्म है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होस्टेड है। आज यानी अगर जीसीपी फेल एंड फ्लॉप की सिचुएशन में जाता है तो फायरबेस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लाउड आईएएम वहाँ पे यानी हमने छोड़ा था। तो क्लाउड आईएएम का मेन मकसद ये है, ये आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट रोल्स को रेफ़र करता है। यानी जितने भी हमारे पास आइडेंटिटी और मैनेजमेंट, इसको मैं छोटी सी एग्जांपल से वाज़े करूँगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक कंपनी है, उसमें डेवलपर रैंक के लोग भी हैं, उसमें मैनेजर रैंक के लोग भी हैं, सीईओ वगैरह भी है। तो यानी जो हमारे पास सीईओ है वो जस्ट उसकी जो उससे जो प्रिविलेज दिएगा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, वो यानी डेवलपमेंट साइड पे भी जा सकता है, वो हर तरफ जा सकता है। हम एक एप्लीकेशन ऐसी डेवलप कर रहे हैं जिसमें हमारे पास यानी डेवलपर्स भी हैं, डिज़ाइनर्स भी हैं, कंटेंट राइटर्स भी हैं। तो यानी एक डेवलपर को जो है वो ऐसी प्रिविलेज दी जाएगी कि वो सिर्फ अपने टेक्निकलिटीज़ या जो कोड बेसिस हैं वहाँ तक उसकी रसाई होगी। लेकिन एक डिज़ाइनर जो होगा उसको जो है वो अपने डिज़ाइंस तक और यूआई यूएक्स की टीम तक जो है वो रसाई होगी। इसी तरह कंटेंट वाले की भी। लेकिन अगर एक बंदा मैनेजर लेवल का है तो उसको यानी इस चीज़ पे हम लाएंगे कि यानी वो डिज़ाइन की टीम में भी जा सकता है, उसे भी यानी सुपरवाइज़ कर सकता है, और जो कोड बेसिस हैं उन्हें भी वो इजीली जो है वो देख सकता है। तो यानी आइडेंटिटी और मैनेजमेंट के जितने भी रोल्स हैं वो क्लाउड प्लेटफॉर्म इजीली करता है। ये सारी चीज़ें यानी हमें फ़िलहाल तो सही नहीं लग रही होती, लेकिन जब आप इंटरप्राइज़ लेवल पे जाते हैं तो इंटरप्राइज़ लेवल पे ये सारी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। क्लाउड लॉगिंग के हवाले से ये बात है कि अगर सीईओ लेवल का कोई बंदा है तो वो इजीली देख सकता है कि हमारे कंपनी के अकाउंट से किस एम्प्लॉय ने यानी किस रीजन में क्या चीज़ जो है वो डिप्लॉय की है। तो यानी ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एरर रिपोर्टिंग जो है यहाँ पे पहले से जो है वो इनबिल्ट होती है। डिबगिंग ट्रेसिंग की पहले भी बात हो चुकी। कोड बिल्ट और टूल्स के हवाले से बात करता चलूँ तो हमारे पास हम सब का जो है हरदिल अजीज़ कोड एडिटर है या जो आईडीई है वीएस कोड, उसके लिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की प्रॉपर जो है वो एक प्लगइन आता है जिसे इंस्टॉल करने के बाद हम इंटेलिजे के लिए भी आता है। तो यानी इसे इंस्टॉल करने के बाद हम लोकली डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं और उसे जिस तरह हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम में अपलोड करते हैं तो इस तरह इधर भी अपलोड कर सकते हैं। मैं अपने डीएससी फेलोज से पहले भी बात कर रहा था कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी एक बहुत माइटी चीज़ है। यानी इसको एक सेशन में कवर करना या इसको पूरे तरीके से समझा पाना इंतहाई यानी बहुत ही मुश्किल काम है। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी एफ़र्ट थी। उम्मीद है आप सब को जो है वो इस चीज़ से कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा। और क्लाउड सीखो का इंशाल्लाह जो है वो सीज़न 2 तो हमारे पास गुजर गया, लेकिन सीज़न 3 की इंशाल्लाह हमें पूरी तरह से वो है यहाँ पे मैं चैट में शेयर कर दूँ। ये हमारा क्लाउड फेस्ट यूईटी पेशावर के हवाले से हमने हमारी एक पूरी कैंपेन थी अराउंड अबाउट 10 डेज़ की। तो उसमें यानी मेरी एक पॉडकास्ट थी, तो आप लोग इसे भी सुन सकते हैं। और यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी छोटे लेवल पे कवर करता है। सो दैट वाज जस्ट अ लिटिल एफर्ट फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू वैद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा जो है मतलब ये कहूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग इन फ्यूचर राजा अहमद अवर स्पीकर, ग्रेट स्पीकर, इज अ टेक इवेंजलिस्ट। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो वो हमारे जो है राजा अहमद भाई हैं, और हम बीएससी कोलैबोरेशन उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए जो है हमारे स्टूडेंट्स को क्लाउड कंप्यूटिंग से डिटेल में एक सैर हासिल गुफ्तगू की और उन्हें डिटेल में क्लाउड कंप्यूटिंग के जो है वो बेनिफिट्स बताए और उसके जो है बारे में स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दी। तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर हैं आप स्टूडेंट्स के तो आप लोग कर सकते हैं, तो स्पीकर से जो है वो आंसर करवा लेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में अपने क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर हम लोग करवा देंगे। इट्स इनकरेज टू अगर जिसके भी क्वेश्चन हैं तो यानी इट्स इनकरेज्ड जस्ट अनम्यूट हो और जस्ट स्पीक इट अप, बिकॉज हम चाह रहे हैं काफ़ी इंटरेक्टिव रहे सेशन।
अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, देन फिर हम जो है इसको रैप अप करेंगे। Assalamu alaikum. Am I audible? जी So I'm part of the BSc University of Peshawar. I just want to acknowledge the efforts and I want to acknowledge कि इतनी खूबसूरती के साथ राजा अहमद ने ये पूरा इवेंट एक्सप्लेन किया, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सप्लेन किया, and it's really like we do not have any question. इतनी perfectly smoothly इन्होंने explain किया। जी कोई नेक्स्ट क्वेश्चंस है किसी स्टूडेंट्स का, देन वो कर सकते हैं। Well, we would like to thanks Raj Ahmed and our faculty advisor, Dr. Sarah Sheznad, and other of my teammates. Thank you for joining us and having us. Thank you, Vedula Rao and Raja Ahmed and Ashraf Bhai. Well, I'm also honored to have the faculty members of University of Peshawar. और बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अनम्यूट करें। जी किसी का क्वेश्चंस है तो काइंडली अनम्यूट करके वो क्वेश्चंस कर सकता है, स्पीकर जो है वो उन्हें आंसर कर देंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग जीसीपी करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं चैट में। तो कोई चले ठीक है जी। तो मैं एक दफ़ा फिर राजा अहमद भाई का बहुत ज़्यादा यानी कि इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी DSCC एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जाम एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर DSc लीडर मोहम्मद हनीफ भाई यूनिवर्सिटी एंड एज वेल एज अशारिब अहमद सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गूगल क्लाउड पर एक मतलब सैर हासिल गुफ्तगू की और सच आ नॉलेजेबल एंड वेरी ग्रेट सेशन कंडक्ट किया। तो हम लोग इस सेशन को कंडक्ट करते हैं और इन फ्यूचर भी हम आपके स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ जहाँ चैप्टर्स इस्टेब्लिश हैं या जहाँ नहीं भी हैं उनके लिए इस तरह के सेशंस इन फ्यूचर भी कंडक्ट करवाते रहेंगे। थैंक यू राजा अहमद भाई, बहुत वेल उबैद, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एज वेल। और इंशाल्लाह फ्यूचर भी जो है वो कोलैबोरेशंस का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई।